Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. In right angle triangle ABC, right angle at C. See, where is the right angle? The right angle is at C. So it is right angle at C. M is the midpoint of hypotenuse AB. This is very important word. See what he says. This is the hypotenuse and M is the midpoint. So whatever important word is given, I will note down that important word. What is the key word is M is the key word is M is the midpoint of M is the midpoint of AB. So what you say and what I interpret is very important. If you say that M is the midpoint of AB, what I understand is these two sides become equal. So that is what I am writing. M is the midpoint of AB. Therefore, what I understand is DM. I'm sorry, not DM, it's AM. AM is equal to MB. So from what you said, this is what I am concluding. आपने जो कहा उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ. मैं अपना कम दिमाग लगा रहा हूँ और आपने जो कहा उसी को ले रहा हूँ. तो यह मिड पॉइंट हो गया. उसके बाद तो पहला पॉइंट मैंने नोट कर लिया. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? M is the midpoint of hypotenuse AB. उसको मैंने नोट किया. C is joined to M. C को क्या किया? C से इसको लिया और M तक ज्वाइन किया and reduced to a point such that DM equal to CM. That is also second point. दूसरा point क्या है?
सी को बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ाया? ताकि डीएम और सी इक्वल हो जाए, यानी खुद वो कह रहे हैं कि ये सब ये दोनों इक्वल है। तो मैं ऐसे कहूंगा, मेरा सेकंड पॉइंट है डीएम इक्वल टू सीएम। ये कौन कह रहा है? सर ये तो दिया है उन्होंने, वही तो मैं भी कह रहा हूं। दिस इज व्हाट इट इज गिवन, दिस इज गिवन। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट ई, यहां पर इसको जोड़ दिया गया, यानी एसीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल है, यह मिड पॉइंट है, और यहां से एक लाइन लिया गया ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, और इसको जोड़ दिया गया। तो पहला प्रश्न है, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल एएमसी, ट्रायंगल डीएमसी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं आपके चेहरे पे खुशियां देख रहा हूं, सर हमको उत्तर मिल गया सर, जवाब मिल गया सर। कैसे मिला? सर दो साइड्स इक्वल है सर, और तीसरा क्या इक्वल है? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल दिखाई दे रहा है सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपका जवाब ये है तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि व्हाट इज इट, एंगल डीएमबी, एंगल डीएमबी इज इक्वल टू एंगल एएमसी, एंगल एएमसी। सर ये कहां से आया? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये थर्ड इक्वेशन है VOA। यानी हुआ क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करो। टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल is and including angle between them, two sides of two triangles and one including angle between the equal sides are equal. That means yes a yes congruency, yes a yes congruency we can use. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों, from equation 1 2 and 3 triangle AMC, triangle AMC congruent to triangle BMD। सर कौन सा रूल यूज किया? टू साइड्स वन इंक्लूडिंग एंगल, यानी यस ए यस यूज किया। टू साइड्स वन इंक्लूडिंग एंगल आप करोगे तो यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी रूल मैंने यूज किया। अब बच्चों इस रूल को यूज करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि DBC इज अ राइट एंगल, ये मुझे प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या है? सर ये तो ऑलरेडी राइट एंगल है सर, इसको भी तो राइट एंगल प्रूव करने के लिए वो कह रहा है। तो कैसे प्रूव होगा मैं आपको बता देता हूं। बच्चों देखिए, ये दो ट्रायंगल्स क्या है? ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। CT कैंसिल है। उसके बाद क्या होगा? सर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो इक्वल होगी। सही आपका कहना। यानी क्या हो गया कि दो लाइंस पैरेलल है और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, यानी ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। यानी इफ एट ऑल दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये सारे उसके रिजल्ट्स हैं। क्या क्या रिजल्ट्स हैं मैं आपको बता दूं। रिजल्ट नंबर 1 होगा साइड BD इक्वल टू साइड AC, साइड BD इक्वल टू साइड AC। फर्स्ट रिजल्ट CTC। सर ये तो आपको पूछा नहीं, वाइड राइट, आई कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट व्हाट इज दैट? एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल MCA। क्यों? बिकॉज CT। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल MCA। सो ये कहां से आया? CTC। सर दिस इक्वल टू दिस, आपने तो दिस इक्वल टू दिस भी कहा था, वो क्यों नहीं लिख रहे आप? नहीं मुझे नहीं लिखना, आई डोंट वांट टू राइट इट, छोड़ देता हूं मैं, छोड़ रहा हूं। तो क्या होगा बच्चों? इसका मतलब क्या हो गया कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गया, और
साइड्स आर पैरेलल, यानी क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, therefore BD is parallel to, BD is, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों पैरेलल होगा, यानी क्या होगा, BD is parallel to AC, BD is parallel to AC होगा। तो बच्चों अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा और उसमें से ये एंगल अगर 90 होगा तो ये एंगल कितना होगा, सही है, दोनों मिला के 180 होना चाहिए, इसमें से एक एंगल 90 तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90 होगा सर। तो फाइन, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसमें से ACB कितना है, ऑलरेडी 90 है, तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90। तो देखिए DBC इज राइट एंगल हमने प्रूव किया। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि क्या मैंने किया। बच्चों ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी वो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर एक जेड फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे भी एक जेड फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा जेड फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, इस तरह से, यानी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल मींस साइड्स पैरेलल हो गए ये दोनों, और ये दोनों पैरेलल हो गए बच्चों, यानी दिस इज ऑलरेडी 90, इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, और उसमें से एक ये 90 है तो बचा हुआ ये कितना होगा, 90 होगा। तो पहला हमने प्रूव किया ये दो कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा हमने प्रूव किया ये दोनों, ये वाला एंगल 90 है। तीसरा है CM इक्वल टू हाफ AB, CM की वैल्यू AB का आधा होगा। बच्चों इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे देखिए इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल लूंगा और ACB ट्रायंगल लूंगा। क्यों लिया सर आपने इसको, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। हाँ, मुझे ये प्रूव करना है DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, तो इसलिए मैं इन दो ट्रायंगल्स की जब बात करूंगा बच्चों, तो देखिए कि DB और AC दोनों इक्वल हो जाएगा, DB इक्वल टू AC, CPC के अंतर्गत ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए बच्चों, ये साइड कॉमन है, तो BC इक्वल टू क्या होगा, BC सेकेंड इक्वेशन, यानी इसको कहेंगे इक्वेशन A कहेंगे, इसको हम इक्वेशन B कहेंगे। बच्चों दो साइड्स इक्वल है, एक साइड कॉमन है और दो एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है, यानी कौन सा, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन होगा, C कहेंगे हम, या तो 4/6 भी आप कह सकते हो। यानी क्या प्रूव किया मैंने, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज कॉमन फॉर बोथ, दिस इज राइट एंगल, यानी टू साइड्स आर इक्वल, वन साइड इज कॉमन, so in between the two common equal sides one right angle is equal, तो यानी टू साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होता है, तो यस कॉन्ग्रुएंस के अंतर्गत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। कौन सा रूल यूज किया हमने यूज किया SAS, हमने यूज किया। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो एक दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हो जाएंगे। कैसे कमॉन डॉट, यस आप सही हो, क्या आपने सिटी बोला, यस सर, बहुत तो बराबर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू CD होगा,
क्यों? क्योंकि CPCTC AB की लंबाई CD की लंबाई के बराबर होगा। तो व्हाट आई कैन से इज सर, तो AB की लंबाई अगर CD के बराबर होगा तो वो CD को हम CM प्लस MD लिख सकते हैं ना सर? लिख दीजिए भाई साहब, किसने मना किया आपको? CM plus MD, you can write. See here, if I say that this triangle, that is DBC and ACB are congruent, then this side and this side will be equal. And if this side equal to this side, then this side is equal to the length of CM plus MD. But sir, CM equal to DM तो उन्होंने दिया है ना सर, यहां पर है देखिए अब CM equal to DM. Then what? Then I can write here CM plus CM equal to AB. So AB equal to 2 times of CM. So if I transpose it, then half AB equal to CM. So what I got is, I should prove that CM is equal to half AB. So that's all children. So with this we complete the first exercise of the topic triangles. मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ मैंने किया क्या है। सिंपल है बच्चों, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ है। फर्स्ट प्रूफ हमने यहाँ पर किया। उसके बाद क्या किया हमने, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो मुझे ये दोनों को पैरेलल बताना है। तो पैरेलल कैसे बता सकते हैं हम? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं बच्चों। तो ये दोनों लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होगा बच्चों, तो दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल शुड बी 180। तो उसमें से अगर ये 90 है तो बचा हुआ ये कितना होगा? बचा हुआ ये भी 90 होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, आउट ऑफ व्हिच वन इज 90, तो सेकंड हैज टू बी 90। थर्ड पार्ट में आता है इस ट्रायंगल को, तो एक 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है DBC और ACB ट्रायंगल के अंदर। ये दोनों ऑलरेडी CPCTC के अंतर्गत कॉन्ग्रुएंट है, से इक्वल है, ये साइड कॉमन है बच्चों, ये भी 90 ये भी 90 है, यानी दो साइड और बीच वाला एंगल 90 है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो तीसरा प्रूफ हो गया। चौथा प्रूफ हमने क्या किया, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, यानी क्या होगा? AB की लंबाई, द लेंथ ऑफ AB विल बी इक्वल टू CD। तो CD का मतलब होता है CM प्लस MD, मगर सर CM और MD इक्वल है, यानी CM प्लस CM कितना होगा? 2CM होगा, यानी हाफ AB विल बी इक्वल टू CM। तो बच्चों मैं इतना महत्व देकर लगभग आधा घंटा 20 मिनट से मैं इसी प्रॉब्लम को पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। So I hope you understand the importance of this problem and try to practice it as much as possible. ये एग्जाम में गारंटी आता है, 4 में से कम 2 कंडीशन तो आपको यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा जाता है एग्जाम के अंदर।